good morning from the beautiful Gaddafi Stadium, Lahore. This is Airshal presents the University of Lahore Quaid-e-Azam Trophy, Day 3 of this final in Karachi Region Blues and Sialkot region. A day that is promising to be a very good one because these two sides, there's not much to compare between very good sides. Karachi Blues definitely the most experienced one. They've got Saud Shakil, Shan Masood, Ramiz Aziz, Kashif Bhatti, Mohammad Omar. They've got lots of experience in that side. And on the other side, they're up against the defending champion Sialkot region. Lots of youth, talent and flair in that side. That includes Horera, Azan Aves, Abdullah Shafiq. We all know what he can do. Hamza Nazar, Hassan Ali, Osama Mir, Muhammad Ali and Muhammad Hasnain. So these are the two sides that are taking on each other for this big final. The situation so far, Sialkot region in their first inning are 235 for 6 with Hamza Nazar on 62 of 116 deliveries. He's still there on the crease and he holds the key that which way the Sialkot region inning will go. Hassan Ali has contributed 29 runs of 27 deliveries. Very helpful inning by the end of the day yesterday. Very disciplined Karachi Region Blue fast bowlers especially. Saqib getting a couple of wickets. Mushtaq also one. Mohammad Umar also getting 2 wickets. It's been all fast bowlers for Karachi Region Blue. That's how the match stands at the start of day 3. This is Karachi Blues. They were asked to bat first, scored 340 runs. Abdullah scoring 88. Usman also scoring 82. Muhammad Ali getting 4. And in reply, Sialkot region are 235 for 6. They trail by 105 runs. Right, let the play start. Let's play. Down the track. Yeah, that was what I was hoping and I was thinking that Hassan Ali will do. This time it's a big whack. Comes down the track and gets hold of it. Over the boundary by some distance. 6 for Hassan. Staring down the track. Gone! Straight to the fielder. Thick outside edge. Partnership broken. Great breakthrough for Mohammad Umar and Karachi Blues. Thick outside edge goes to gully, a sharp one and well taken there by the fielder. Hamza Nazar after his long stay, 64 of 125, pushes once again. He's been so lucky pushing on the front foot on this bouncy track, and this is something which you don't need to do. Once again a ball which was to be played on the back foot. He lunges forward and this time is not lucky. Sialkot lose their 7th at a crucial stage. 245 they are. Mohammad Umar, the partnership breaker. The no ball check. It's perfectly fine. The front foot of the bowler. And have a look at this. Stepping in on the front foot. Playing further away from his body. And well taken there. Shirt number 14. We'll find out the name soon. Haroon Arshad is the catcher. Fantastic. Superb placement. Great execution by Hassan Ali. Sensational stuff. You asked what Hassan Ali was planning to do, and this is what he has done. Edge gone. Another one bites the dust. Hassan Ali was looking to be so positive, but any delivery had his name written on it, and it was this one. Saqib strikes. Early strikes for Karachi Blues. Sialkot lose Hassan Ali, their 8th wicket. Previous ball was hit down the ground and then one moving away was good enough
took the outside edge, and Saad Beg did the rest. The front foot check, not an issue, half and half. And this is how it came about. Ball swinging away. Previously, this sort of the deliveries beat him a number of times, but this time it took the outside edge as Hassan Ali walks out in his very own style. Mohammad Umar looking for a fifer. There are a couple of wickets to get. Usama Mir goes big. Has it gone far enough? Has it got long enough? A boundary maybe? No, excellent work. They surely, third umpire will come into play. Shan Masood was the fielder again. He's been a live wire in the field for Karachi Blues. But Abdul Makid is taking his time. Right, the correct decision has been made. Boundary given to Sialkot region and Usama Mir, but excellent effort by Shan Masood nevertheless. It's in there, it should be taken. Shan Masood settling under and taking it quite handsomely, easily. Fourth one for Mohammad Umar, ninth for Karachi. Usama Mir looking to go big, looking to get some quick runs and losing its wicket. This is good from Umar. Testing Usama Mir on the shorter length. This pitch has a bit of pace in it, and the bounce we all know, we have seen a number of times. There is no issue with the front foot, and the short ball proving fatal for Usama, who just wanted to hit a forehand of it. That is like a tennis stroke, and ends up ballooning the ball in the air, and underneath it finds the safe hands of Shan Masood. Usama Mir, 8 he got, and Sialkot now very close to the wrap-up, 257 for 9. कम अप विद द पॉइंट. आपको विकेट टू विकेट गेंद करना होगी और आउट करने की कोशिश करना होगी. लीजिए, खुद से गलतियां भी करते हैं बैटर जो हैं, टेल एंडर्स जो हैं. और यहाँ तकरीबन गलती हो चली थी हारून अरशद से, लेकिन फिर उन्होंने कैच लिया. तो इनिंग्स तमाम हुई सियालकोट की और आउट हुए हसनैन. आखिर में सबर का दामन उनका जो है वो छलक गया और 266 पर सियालकोट की इनिंग्स तमाम हुई. अच्छी बॉलिंग का सिला मिल गया है साकिब को. उन्होंने अपनी चौथी विकेट हासिल की. इस गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं थे बैट्समैन हसनैन. यूसी यही इख्तिताम होना था. हसनैन मिलाकर 4 रन बनाकर आउट हुए. 17 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया. 266. अब एक बड़ी माकूल सबकत हासिल कर ली है कराची ब्लूज ने और एक दाग बेल डाल दी है इस मैच पर. ड्राइविंग सीट पर आने के हवाले से 74 रन की सबकत काफ़ी माकूल समझी जाएगी इस विकेट के ऊपर, जहां पर गेंद ऊपर नीचे रहती है, स्विंग भी होती है और बैट्समैन के लिए मुश्किलात भी पैदा करती है. बाय ऑल मीन मैं कहूँगा कि आज बड़ी अच्छी एक 235 फॉर 6 ओवरनाइट और दोनों जल्दी आउट हो गए. हमजा नज़र भी और हसन अली भी. हमजा 62 से 64 तक पहुँचे, तो ऐसी कोई ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई नहीं और आखिरी 4 विकेटें जो हैं वो बड़ी जल्दी गिर गई. 266 पर तमाम खिलाड़ी आउट सियालकोट के हो गए. सियालकोट ने 266 रन बनाए 340 के जवाब में कराची के. हुरैरा 9 रन बना सके. अजान उवैस ने 2 रन बनाए. बदकिस्मत थे हुरैरा. अब्दुल्ला शफीक जब रन आउट हुए उसके बाद दबाव आया सियालकोट की टीम पे, जिसे कम करने की कोशिश की. मोहसिन ने हमजा के साथ उनकी उम्दा पार्टनरशिप थी. इस मैच की इकलौती सेंचुरी पार्टनरशिप. 71 रन मोहसिन ने बनाए. उमर के हाथों वो बोल्ड हुए और हमजा आज आउट हुए. उन्होंने 64 रन बनाए. 41 रन के साथ अच्छा हाथ हमने हसन का भी देखा. सिर्फ 43 गेंदों में 16 एक्स्ट्राज स्कोर में शामिल. बहुत अच्छी काविश रही बॉलर्स की और उन्होंने नैगिंग लेंथ से विकेट टू विकेट गेंदें की और कोई मौका नहीं दिया. और सूरज बन के चमके साकिब 4 for 79. 4 विकेटें उमर ने हासिल की, वो उन्होंने भी 79 रन दिए. और बाय ऑल मीन कहना होगा जिस तरीके से विकेटें गिरी, लगता है किसी मौके पर भी संभलने का मौका नहीं दिया. 1-2 अच्छी रफाकत ज़रूर कायम हुई सियालकोट की जानिब से, लेकिन फिर सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहाँ से ख़त्म हुआ था. और आप देख सकते हैं फॉल ऑफ विकेट जो है ये फेवर में रही कराची ब्लूज़ के. और एक मेरे ख्याल में उनके नुक्ता निगाह से जो एक हदफ था
266 का उसके ऊपर उन्होंने बंडल आउट कर दिया। बंडल आउट ही कहना होगा, ये काजम ट्रॉफी का फाइनल है, यहाँ पे तो 350-400 रन बनने चाहिए थे। जी हाँ, पूरे 72 ओवर भी नहीं खेल सकी सियालकोट की टीम अपनी पहली इनिंग्स में। और अब एक नज़र दौड़ाते हैं अब तक के हालात पर। कराची ब्लूज ने 340 रन बनाए। अब्दुल्ला जो नौजवान खिलाड़ी हैं उन्होंने 88 रन की इनिंग्स खेली और उस्मान ने 82 रन बनाए। उस्मान खान ने 4 विकेटें ली, मोहम्मद अली ने, और जवाब में सियालकोट की इनिंग्स सिमट गई है 266 पर। As the second innings start from Karachi Blues. What is the best option for Sialkot region other than getting quick wickets? This might go for a boundary. It does. So leg side-ish line, Hassan Ali not working for him. Easy boundary given. This time around it is well timed. It's towards square leg. The fielder is after it, but the chase would be just to collect the ball. 4 runs. And Abdullah is off and running. Gully or slip in place for him. Beautiful. Picture perfect. Fantastic shot. This boy can bat. Saad Beg. Beautifully driven down the ground. He was offered this stroke. Foolish in length, in fact, over pitching. Yeah, because why I say Luckies, I'll come back to it because this one is edged, but it doesn't carry. It goes through the slips. And this time the batter would feel that he's been lucky, but he's also played it well with soft hands. He didn't push it. And that's why the ball didn't carry to the slips as well. बहरहाल खेल का दोबारा आगाज हुआ और एक शानदार चौका था। काफ़ी आगे पड़ी हुई गेंद थी और इंतज़ार किया साद ने। 2-4 की एक माकूल औसत है, अगर चाहिए कुछ इतनी मैटर नहीं करती। अप्लाई करना होता है, रोकना होता है, तो तरीके से गेंद को पुल कर दिया और गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। अब यहाँ पर ज़्यादा एतमाद दिखाया इस बार साद ने। और ये भी उतने ही ये क्रिकेट के खादे में जितना कि कोई टेस्ट क्रिकेटर। शॉर्ट गेंद को कट किया, 4 रन का और इजाफा। ये भी देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि क्या बल्लेबाजों के अंदाज में कोई तब्दीली आती है। बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर स्लैश किया और अच्छा कैच। गेंद पहले लगी दूसरी स्लिप के हाथ में, पहली स्लिप की तरफ आई, डिफ्लेक्ट होकर और साद आउट हो गए। ख्याल यही था कि वो यहाँ से लंच के लिए खेलेंगे, लेकिन इन दिनों बल्लेबाज रुक नहीं पाते ऑफ स्टंप के बाहर गेंद देख के। बिल्कुल एक लीगल डिलीवरी थी, बड़ा अच्छा फॉलो थ्रू देखे, झुके और इसको खड़े खड़े कट करने की कोशिश की। आउटरेज लगा और बेशतर हिस्सा जो है वो जाके मुकम्मल हुआ पहली स्टेप में कैच की सूरत में। तो इस तरह एक धचका लगा है। साथ जो कि काफ़ी सेट हो चुके थे, 39 गेंदें खेल चुके थे 31 रन के लिए, आउट हुए कराची ब्लूज 53 पर 1, 14 ओवर 11 ओवर और 4 गेंदों के बाद। और ये आखिरी गेंद मुमकिन तौर पर इस सेशन की, इसे जाने दिया, बाहर से बाहर देखा, बिल्कुल खेलने की कोशिश में नहीं की। यहाँ हारून ने इस तरह ये पहला सेशन जो खासा 12 ओवर रहा बॉलर्स के लिए, 5 विकेटें गिरी इस सेशन में। सियालकोट ने किसी हद तक सुख का सांस लिया होगा कि उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप को ख़त्म किया। अब्दुल्ला इस वक्त भी नॉट आउट वापस आ रहे हैं और वो चाहेंगे कि पहली इनिंग्स की जो कारकर्दगी थी 88 रन की उसको दोहराएं, बल्कि बेहतर करें। कराची को बहुत बड़ी सबकत इस मैच में हासिल हो गई है। पहली इनिंग्स में उन्होंने 74 रन की सबकत हासिल की थी और अब 129 मजमूई उनकी बर्तरी है। अभी 9 विकेटें बाकी हैं। ये तीसरा दिन है इस 5 रोज़ा फर्स्ट क्लास फाइनल का।
और आप भी सोच रहे हैं उससे पहले कराची ब्लूज की ये दूसरी इनिंग्स का अहवाल है। 7 आउट होने वाले इकलौते बल्लेबाज उसामा ने उनको कैच लिया स्लिप में। हसनैन थे बॉलर, डिफ्लेक्ट होकर आई थी अब्दुल्ला शफीक के हाथ से। खासा तेज शॉट खेला था, स्लैश करते हुए आउट हुए साद, लेकिन अब्दुल्ला के साथ उन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप की। मुसलसल दूसरी बार इस फाइनल में 55 पर 1 कराची। ये बॉलिंग की परफॉर्मेंस है और वाहिद कामयाब हसनैन रहे। 4 ओवर में सिर्फ 8 रन से और 1 विकेट हासिल की। बड़ी नैगिंग लाइन और लेंथ थी, अच्छी पेस थी, पेनिट्रेशन जिस विकेट पर खूब उछाल उन्होंने हासिल किया। सो इज अबाउट हसन, लेकिन हसन थोड़े महंगे रहे हसन अली। उन्होंने शॉर्ट गेंदें की, उनको चौके भी लगे, एंक्शियस मोमेंट बैटर्स के लिए भी रहे। ओवरऑल कहना होगा कि तसल्ली बख्श बॉलिंग की परफॉर्मेंस है सियालकोट रीजन की। जो 4 बॉलर आजमाए थे, पहली विकेट गिरी जो अब तक गिरने वाली वाहिद की विकेट थी 53 के मजमूई स्कोर पर जब 7 आउट हुए। जहां कराची ब्लूज को टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया। उनने बनाए 340। सियालकोट रीजन आज 266 पर ऑल आउट हुए। 4 विकेटें मोहम्मद उमर और साकिब ने हासिल की और दूसरी इनिंग्स में अब कराची के 55 रन शामिल करके 129 की उनकी बढ़तरी है। 9 विकेटें बाकी हैं और तीसरे दिन इस वक्त खाने का वक्फा है और हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे वक्फे के बाद। Yeah, Ali, you make a good point while you thank the sponsors, and it's not only the marketing thing or not only just endorsing a sport or maybe encouraging people. It goes way beyond that. You're shaping the future of your country. जी हाँ, बिल्कुल आप सलमान सही कह रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर और ख़ासकर जब आप टेस्ट क्रिकेट से वापस आ रहे हो और एज ए सीनियर प्लेयर, ये तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और रखना भी चाहिए था। This one climbs up. I think it took the top edge and it just flew over the keeper. Yes, the umpire signals 4 runs. And after 21, Karachi moved to 75. पीछे और ये खूबसूरत शॉट है इस बार निहायत आला सहर अंगेज। अब्दुल्ला अगले कदम पर आए और गेंद को महज पुश किया। उनने कवर्स में दंदनाती चली गई हद पार। This is good. Great weight transfer, great placement, great result for Karachi Blues. A boundary for Haroon. Very wristy. Very wristy. Will earn him a boundary. That's great batting by Abdullah. Cuts handsomely. Great placement also. Back up. As he comes back and secure another 50 of the game. That's a masterclass. At this young age, he's shown maturity, great temperament, great skill. As he gets to his second 50, a fantastic knock, one for the team. Abdullah Fazal. और यहाँ ये गेंद किनारा लेती हुई गई। थर्ड मैन को 4 रन मिलेंगे। हारून ने इस बार बड़े नर्म हाथों के साथ खेला। बाज को दिलचस्पी किसी दूसरे बॉलर में होती है या किसी दूसरे ऑलराउंडर में होती है। मुझे लगता है कि सेहत में इनसे इस्तेफादा किया जाना चाहिए था और ज़्यादा। और ये रिवर्स स्वीप है 4 रन के लिए, बड़ा अच्छा फैसला था मेरे ख्याल में। और ये बॉलर की लाइन और लेंथ को भी डिस्टर्ब किया इस बार। रहे बड़े ओहदों पर रहे वसीम बारी। हम जहत उनकी शख्सियत थी। और यहाँ चाय का वक्फा। अंपायर ने बेज उड़ा के रख दी। 131 कराची। ये भी सेशन कराची का हुआ। ज़्यादातर सेशंस उन्होंने जीते हैं आज के दोनों। और अब्दुल्ला इसमें पेश रहे, उन्होंने बुनियाद रखी थी कराची की इस मुकाबले में बढ़तरी की पहले दिन से ही। शानदार रफाकत इन दोनों के दरमियान जा रही है। 58 पर बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला। हारून नॉट आउट है 30 रन पर। मजबूर स्कोर 131 है, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 एक्स्ट्रास के रन भी शामिल हैं। 39 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। फ्यू वर्ड्स फ्रॉम तारिक सईद बिफोर
द टी इंटरवल। तो यहाँ पर एक और बात करते हैं तारिक की, जो बॉलिंग है इसमें सिर्फ हसनैन कामयाब रहे और बकिया तमाम बॉलर जो हैं वो महरूम रहे, उनको विकेट नहीं मिली। हसन और मोहम्मद अली, हमज़ा और उसामा बॉलिंग करते रहे। उसामा ने सिर्फ 3 ओवर्स किए, हमज़ा ने कंपैरेटिवली एज ए स्पिनर 6 ओवर्स किए, 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। वाहिद विकेट 53 के स्कोर पर गिरी और इस तरह एक मोनूमेंटल जो टारगेट जो मुतवक्को तौर पर नजर आ रहा है वो कराची की टीम जो है वो वज़ा करने में कामयाब हो जाएगी। ये मैच समरी है। यहाँ 205 रन की बढ़तरी है कराची को। इस मैच के तीसरे दिन चाय का वक्फा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। वक्फे के बाद हम फिर से आएंगे लाइव एक्शन के साथ। Sialkot region in search of a wicket after tea. Once again, it's Hamza to start off from the pavilion end, and would be interesting to see who bowls from the other end. This is cut and cut hard. No chance for the fielder in the ring and no chance for the fielder on the boundary. Azan Awais tried his best, but to no avail. 4 more to Abdullah. Yes, found the gap. And the boundary. This is top stuff from Abdullah. Every time he's erred in the length, Abdullah has capitalized on it and hit a boundary. This is great batting. Edged and over the head of the fielders. For a boundary to Haroon as he brings up his 50. A well-deserved half century from the youngster. Very committed, very disciplined. Showed great skill and temperament. Stood there with Abdullah and achieved his milestone. Very well played, Haroon Arshad. Marriage of this year. It was a cricketing marriage, and this being a 4 runs. So runs coming in by interval, I would say. हसन अराउंड द विकेट, खूबसूरत तरीके से खेला। फील्डर ने दौड़ने की भी जरूरत महसूस नहीं की, वो जानते थे गेंद जाएगी हद पार। अब्दुल्ला का ये ट्रेडमार्क कवर ड्राइव और ये रन बड़ी तेजी के साथ हासिल किया। एक नहीं और एक से ज्यादा भी होंगे और साथ साथ सेंचुरी भी लाजवाब इनके करियर की। ये सेंचुरी हमेशा याद रखी जाएगी। ये दूसरी है इनके फर्स्ट क्लास करियर में और कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 3 फिगर्स इनिंग्स का एजाज हासिल किया। बड़े सब्र के साथ, बड़े इस्तक़लाल के साथ इन्होंने बैटिंग की और आखिर में इस जुर्रत और जमा मर्दी का और सब्र का इनको पूरा सिला मिल गया। जी बेशक, जितनी भी तारीफ की जाए इस इनिंग की वो कम है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशंस में जहां पे बॉलर्स हावी रहे हैं वहां पे आके एक यंगस्टर ऐसी इनिंग खेलना, जब बड़े नाम बड़े प्लेयर आके यंगस्टर्स क्लब क्रिकेटर्स के साथ मैचेस खेलेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। खुर्रम मंजूर तो बाकायदगी से खेलते हैं, फवाद आलम भी खेलते हैं, सोहेल खान भी खेलते हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो ये पूरी एज अ जनरेशन को डेवलप करते हैं। 64 ओवर गए, 202 पे 1। तो अंपायर ने अब यहाँ पर खिलाड़ियों को मुत्तला किया है कि मजीद रोशनी इजाज़त नहीं देती, इसलिए खेल को ख़त्म समझा जाए। अब्दुल्ला 104 रन पर नॉट आउट वापस आ रहे हैं। 200 गेंदें उन्होंने खेली। आज के दिन के ये हीरो हैं। पहले सेशन में ही आज 5 विकेटें गिरी थी। उसके बाद अब्दुल्ला और हारून ने इस बात को यकीनी बनाया कि जो सियालकोट के बॉलर्स हैं उनको विकेट से दूर रखा जाए। दोनों ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की और आखिरी सेशन में तेज़ी के साथ दौड़ते हुए भी नज़र आए। ज़्यादातर रन्स उन्होंने दौड़ कर बनाए, ख़राब गेंदों का इंतज़ार किया। टिपिकल और आला पाए की फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब्दुल्ला फजल 104 रन पर नाकाबिल शिकस्त। कल यहीं से खेल
वो शुरू करेंगे। हारून उनके साथ हैं, उनने बनाए 55, उनकी भी नज़र होगी सेंचुरी पर। 31 रन बनाए, 7 बेग ने, हसनैन ने उन्हें आउट किया, उसामा ने स्लिप में कैच लिया। अभी खासी बैटिंग बाकी है, शान, सऊद, उस्मान को खेलने के लिए आना है। 202 पर एक कराची ब्लूज। जहाँ मुश्किलात रही हैं सियालकोट रीजन के लिए बैटिंग में भी और इसके बाद बॉलिंग में भी। सिर्फ एक विकेट हासिल की है हसनैन ने, 37 रन देकर 16 ओवर्स उन्होंने किए। हसन अली, मोहम्मद अली, हमजा, उसामा, ये सब बॉलिंग ज़रूर की लेकिन विकेट हासिल नहीं कर सके, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम रही है सियालकोट रीजन के लिए। 64 ओवर में 202 रन भी दे दिए और विकेट सिर्फ एक ही हासिल किया। ये अब तक इस मैच का हाल है। 3 दिन के बाद एयर सियाल की पेशकश, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल। कराची ब्लूज ने बनाए 340 पहले दिन। सियालकोट रीजन की टीम आई 266 पर आउट हुई पहले इस सेशन में, और कराची ने दूसरी इनिंग्स में 202 रन बनाकर मजमूई तौर पर 276 की सबकत पाई है। अब्दुल्ला ने इस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए, पहली इनिंग्स में 88, दूसरी में 104 नॉट आउट।